Hello everyone, welcome to Vision Educare Academy live lectures. So you can see the topic of the day, that is question tag. We will be considering this topic. Let's get started. So what is question tag? Question tag is basically whenever we ask for confirmation. Whenever we talk anything and we need confirmation on it, it is called question tag. There are certain examples given. You are late, aren't you? Here we have a second example, which says, they haven't visited the museum, have they? Raj doesn't agree with us, does he? He can sing well, can't he? Now, there is a statement given and we have tagged that particular statement with the help of auxiliary verb. Somewhere there is negation and somewhere there is not. There is a pronoun and we have here a question mark, the quotation. Now, in the first sentence, you are late, aren't you? We actually wrote the entire sentence and we are confirming that particular sentence, whether it's true or not. So are become negative, and you have taken the subject pronoun you and then you tagged it with the question mark. They haven't visited the museum, have they? Sentence is in negation and you have used a question tag in affirmation. Again, we have the third example. Raj doesn't agree with us, does he? Fourth example is he can sing well, can't he? So we have witnessed here, whenever we want to confirm any kind of statement, sentence, any conversation of ours, we tag that particular statement. How? Here, in the first sentence, it is affirmative, sentence is affirmative, statement is affirmative, tag is negative. So I'm writing plus sign, positive sign for the statement, and the tag will be opposite of it. They haven't visited the museum, they have they. So here our statement was negative. Third statement was again negative, and the fourth statement is affirmative. So question tag, in short, is a confirmation of the given situation. Let us see the conditions. How many types are there for question tag? To understand this concept easily, we have 5 conditions. Now, the very first condition says, when a sentence is positive, tag will be negative. यानी कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो भी आप उसे टैग करेंगे, जो कॉन्फर्मेशन मांगेंगे, वो नेगेटिव होगा. ये पहली कंडीशन. हमने अपने डेफिनेशन के साथ जो एग्जांपल्स थे उसमें देखा कि 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव. तो हम अब कंडीशन वाइज जाएंगे कि भाई ऐसा सिचुएशन क्यों आता है. सेंटेंस अगर आपके पास पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव बात हुई है, तो आप उसे टैग करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमेशा नेगेटिव बनाते हो, जस्ट टू कंफर्म. ऐसा नहीं है क्या, है ना, हम हिंदी में यूज करते हैं. एग्जाम्पल दिया है, शी इज अ गुड टीचर. तो यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज अ गुड टीचर, एंड वी हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस, दैट इज. So I'll take this auxiliary verb and I'll use a negation with it in a contraction. And then I use the subject pronoun and I'll tag it. So the entire sentence becomes, she is a good teacher, isn't she? So यहाँ पर हमने confirmation जो मांगा वो negation में मांगा because sentence positive था. Likewise, we have other sentences. Let's do it. You can drive a car. We have a verb can. I'll use the same word can. I'll make it a contraction and I'll use the subject pronoun. I would have stopped then. Would have. Now, you might have a question, ma'am. यहाँ तो हमारे पास would भी है और have भी है. You have to consider the first auxiliary verb given after the subject. So I'll use this would
along with negation and I take my subject pronoun I in a capital form and then I'll tag it with the question mark. They had a difficult task. Fourth example, they had a difficult task. We have a verb called had. I'll take the same verb. I'll tag it with the negation because the sentence is positive, affirmative. So the tag would be negative. And I'll use subject pronoun. To confirm it, I'll put a question mark. I am tired. The fifth question is I am tired. Now I am. Am is a verb for which we do not have any kind of a verb to tag it. For confirmation, we use are, and as this statement is affirmative, we'll make it negative and we will put I and we'll use question mark. Now you can see here, there is a formation, there is a structure of, writing this question tag sentences. I'll just show you the structure. See, the examples given, the statements were available. Okay. After statement, you have to use a comma. As soon as a statement or a sentence finishes, you have to put a comma. After comma, you use auxiliary verb. Okay, you use auxiliary verb, any form of auxiliary verb that we will discuss ahead. After auxiliary verb, you need to check whether it's positive or negative. Accordingly, you use affirmation and negation. And further, you use subject pronoun. What is subject pronoun? The subject, यानी कि जो भी अपने नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, शी, यू, आई, दे, आई, ये सारे हमारे सब्जेक्ट के पोजीशन पर आए हुए प्रनाउन है, तो मैं इनको सब्जेक्ट प्रनाउन बता रही हूँ. अगर सपोज ये प्रनाउन की जगह पे किसी का नाम होता तो भी हम उसे सब्जेक्ट प्रनाउन बोलते, बिकॉज सब्जेक्ट की जगह पे नाउन है एंड वी विल बी यूजिंग प्रनाउन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन. And after writing the tag, whether it's in negation or affirmation, after the subject pronoun, you will end the tag with the question mark so that it can look like you are asking for something. You are asking for confirmation. So this would be the structure. ये structure आपको ध्यान में रखना है. इस structure को maintain करना, इस structure को याद रखना बहुत easy है. स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है, उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा. ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो आपको लगाना है, नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे वो हम कंडीशन नंबर 2 में पढ़ेंगे. पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव बनाना है. एंड फिर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे एंड उसे टैग कर देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, सो दैट यू कैन गेट द कंफर्मेशन. ओके, विल मूव फर्दर. Our second condition is based on affirmation and negation. That is, पहले हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव होगा. सेकेंड कंडीशन वाइस वर्सा है. सेकेंड कंडीशन सेज if the sentence or a sentence is negative, your question tag will be positive, right? अभी हमें दिए हुए क्वेश्चंस यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं और ये पांचों की पांचों जो एग्जाम्पल्स हैं नेगेशन में है. वी हैव टू पुट इट इनटू अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव. लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू आरंट जॉइनिंग देम. आरंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अंडरलाइन ऑल माय वर्ब्स गिवन इन द सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज आरंट, एम नॉट, डिडंट, हैवंट, वरंट. फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक मैंने रीड आउट कर लिया. नाउ विल क्विकली टैग दीज स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सेंटेंस एंड दे आर नेगेटिव, तो हमें इनका नेगेशन हटाना है, ठीक है. सो अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव होगा, आर निकल जाएगा. आपका जो भी सब्जेक्ट प्रनाउन की पोजीशन पे प्रनाउन है आप उसके लिए टैग कर देंगे.
आई एम नॉट अ फूल, एम आई, नॉट निकल जाएगा। एंड आप हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आगे रखते हैं और फिर ही आप सब्जेक्ट प्रोनाउन डालते हैं, तभी वो पूछने वाली बात होगी। आपने रिटोरिकल क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को समझा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि रिटोरिकल क्वेश्चंस जब भी आप बनाते हो, जिसे हम वर्बल क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो भी हमेशा इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला पंक्चुएशन आता है, राइट? सो वी आर आस्किंग समथिंग, वी आर आस्किंग फॉर कंफर्मेशन, दैट्स द रीजन इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है? राजेश डिडंट फिनिश द वर्क इज अ थर्ड एग्जाम्पल, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, सो आई रिमूव द नॉट एंड आई विल ऐड डिड। राजेश इज अ मस्कुलिन प्रोनाउन, सब्जेक्ट पोजीशन पे जो नाउन दिया है वो राजेश है, इट्स अ मस्कुलिन, सो आई विल पुट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही। अगर यहाँ लेट्स से कोई नाम होता रूपाली और मे बी सोनाली, तो मैं यहाँ शी लिखती, right? Fourth example is we haven't received the parcel. Haven't, so I will choose have, and we haven't received the parcel, have we? This is the intonation you use while repeating or reciting a sentence of question tag. They weren't confident, were they? So I just take my auxiliary verb from that sentence. I will not use negation, I will use the subject pronoun. अगर तो pronoun दिया हुआ है, आप same pronoun को use करेंगे। अगर suppose pronoun नहीं दिया है, कोई proper noun है, तो आप उसका gender check करेंगे, whether it's feminine or masculine, and accordingly you will use their nominative case, जो subject की position पे use होता है, जैसे I, you, we, they, he, she, it, ठीक है? चलिए, ये तो होगी हमारी सेकंड कंडीशन। आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमारे कॉमा के बाद जो भी स्पेलिंग हमने लिखे, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, हमने सबको स्मॉल लेटर्स में लिखा है। या दैट्स अ रूल। आप जब भी क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस लिखते हैं और उनको स्ट्रक्चर में डालते हैं, तो कॉमा से लेके क्वेश्चन मार्क तक इन दोनों पंक्चुएशंस मार्क के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन आई। आप देखेंगे जहां पर भी हमने आई यूज किया है वो कैपिटल लेटर है, एज दैट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, हम उसे कैपिटल यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेटर्स, रेस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स और सब्जेक्ट प्रोनाउंस सब के सब स्मॉल लेटर्स में यूज होंगे, कभी भी उसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। चलिए, हमने फर्स्ट कंडीशन समझ ली कि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सेकंड कंडीशन थी अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में वी हैड ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट, तो वही रूल बोलता है। थर्ड कंडीशन है व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस यूज द सेम टू मेक क्वेश्चन टैग, यानी कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंस में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय कॉमा के बाद आप वो सेम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें। ये थर्ड रूल है। ये थर्ड रूल क्यों बनाया, आपको फोर्थ कंडीशन पर पता लगेगा। हमें पता है कि हमने ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फॉर्म्स ऑफ टू बी, जिसमें तीन टेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर, सिंपल पास्ट टेंस was, were, simple future tense will and shall. Forms of to have, they are has, have, had, and forms of to do is does, do and did. ये हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि जहां पर भी जो भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में दिखता है आप उसे टैग करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे स्टेटमेंट के, एंड अकॉर्डिंगली यू विल यूज द टैग। ठीक है, टैग करते समय आप ध्यान देंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का।
इसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो दूसरा टाइप है यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप उन्हें भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट? सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे, मैंने बहुत सिंपल वाले लिखे हैं यहाँ पर जो बहुत रूटीन में यूज होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, हैड बेटर, हैड टू, देन यू हैव डेयर टू, डेयर नॉट, नीड टू, ये सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो अगर ये भी सेंटेंस में यूज होंगे तो जो भी फॉर्म यूज किया है आपको वो सेम यूज किया करना है टैग करते समय। दैट मीन्स अगर कैन है तो आप कांट करेंगे, कुड है तो कुडंट, शाल है तो शांट, शुड है तो शुडंट, मे है तो मे नॉट, मेंट, माइट है तो माइटेंट, मस्ट है तो मस्टेंट, विल है तो वोंट एंड वुड है तो वुडंट। तो हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो भी आपको ऑक्सिलरी दिया है सेम ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है और उसके साथ नॉट लगाना है। सो यहाँ पर मैं एक शैल के लिए आप लोगों को लिख देती हूँ। शाल का नेगेशन जब आप बनाएंगे तो हो जाएगा शांट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनते हैं? SHALL प्लस नॉट, है ना, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपोस्ट्रोफी क्यों लगता है? हमें ये लॉजिक पता है कि अपोस्ट्रोफी तब लगता है जब भी हम कोई भी एक अल्फाबेट को रिमूव कर देते हैं एंड वी ट्राई टू ऐड these two words. So what I'll do, I'll remove these two L also. पहले कट नहीं किया था. So SHAN apostrophe T. So we have actually, हम दो apostrophe नहीं डाल सकते, तो हमने क्या किया, लास्ट वाले वर्ड पे यानी कि सेकेंड वाले वर्ड का जो हमें लेटर ओमिट करना है, डिलीट करना है, उसकी जगह पे हमने अपॉस्ट्रोफी डाला। ऐसे ही सेम मस्टेंट हो सकता है, मस्टेंट पॉसिबल है, ठीक है, माइटेंट पॉसिबल है, मे इंट पॉसिबल है। हालांकि आपको ज्यादातर कॉमन पूछे जाते हैं बट स्टिल यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यू शुड नो अबाउट देम। ठीक है, ये तो हमारे हो गए प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो कंडीशन 3 बोलता है जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट है ना सेंटेंस में वही यूज करिए। और फिर हमें कंडीशन नंबर 1 एंड 2 को भी ध्यान में रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब तो है, वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना है। और हमने इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में वही फॉलो किया। नाउ इन दीज एग्जांपल्स आई हैव auxiliary verbs, model auxiliary verbs, or maybe forms of to be, to do, or to have are available. So I'll just mark it. It will make my attempt to write these answer will be easy. So his father is a dentist, मैंने first question read out कर लिया, तो ये auxiliary verb present है, statement positive है, I'll take this particular auxiliary verb after the comma, I'll put negation because sentence positive था, और his father, so I'll tag it he, his father, father का जो gender है वो masculine है, so I'll put he. I am invited to the party. I am, अब मैंने पहले भी कहा था am, आप एमेंट नहीं लिख सकते, आप एंट भी नहीं लिखते, ठीक है, तो आप लिखते हो डायरेक्टली आर। तो इसे जस्टिफाई करने वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है आर। पॉजिटिव है सेंटेंस, हमने नेगेटिव कर दिया एंड कैपिटल आई आएगा, इट विल बिकम आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी, आरंट आई, मैं पार्टी में इनवाइटेड हूं, नहीं हूं क्या? सो यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रही, तो वो इंटोनेशन भी वैसे ही हो जाता है, प्रश्न पूछने वाला, कंफर्मेशन पूछने वाला। थर्ड क्वेश्चन, शी विल कम बैक टुमारो, विल आ गया तो विल का हो जाएगा हमारा won't, and it's feminine, I'll tag it with a question tag, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए और तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रोहन हैज अ नाइस कार, हैज आ गया, फॉर्म्स ऑफ टू हैव पॉजिटिव था, इनफैक्ट सभी पॉजिटिव हैं और हमने टैग नेगेटिव बनाए। रोहन बॉयज कैटेगरी में है, मस्कुलिन है, तो हमने ही डाल दिया। यू मस्ट कॉल हिम, मस्ट
mustn't you, तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, या आप कह सकते हैं तुम्हें उसे कॉल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्या, तो दैट वुड बी द इंटोनेशन। सो सारे के सारे एग्जाम्पल्स पॉजिटिव थे, हमने उसे अफर्मेटिव फॉर्म में थे, हमने उन्हें नेगेटिव में चेंज किया, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट थे तो हमने उन्हीं को यूज करके टैग कर दिया। इजी है ना? इट इज वेरी इजी टू एक्वायर मार्क्स ऑन क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस, तो सिर्फ हमें रूल्स पता होने चाहिए। कंडीशन नंबर 4 बोलता है सेंटेंस में अगर फॉर्म्स ऑफ टू बी नहीं है, क्या नहीं है, फॉर्म्स ऑफ टू बी, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शाल, अगर ये फॉर्म्स ऑफ टू बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में अगर फॉर्म्स ऑफ टू बी नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्म्स ऑफ टू डू। जी हाँ, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऐसा फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपको डूबती नैया कहते हैं ना, बचाने आ जाता है, बस वैसे ही कुछ। फॉर्म्स ऑफ टू बी नहीं है तो कैसे टैग बनाओगे, फॉर्म्स ऑफ डू। ये फंडा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में फॉर्म्स ऑफ टू बी नहीं है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने वाला अगर आपको कोई शब्द नहीं दिख रहा है, ऑक्सिलरी फॉर्म के वर्ब में बता रही हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में, तब आप कुछ तो ऑक्सिलरी लगाना पड़ेगा, बिकॉज टैगिंग तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म्स ऑफ डू का इस्तेमाल करेंगे और फिर उससे बनाएंगे आप क्वेश्चन टैग। ठीक है, लेट्स सी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके मेन वर्ब्स के बारे में, यानी कि जो हम कॉन्जुगेशन लिस्ट करते हैं, वर्ब्स के 5 फॉर्म्स करते हैं, राइट। अगर आपको मेन वर्ब्स में थोड़ा डाउट है, यहाँ पे वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो यू कैन चेक आउट माय मेन वर्ब्स का लेक्चर which has been I think came a few days back. So we'll move further with the examples. Teacher knows the truth. Now here we have the verb knows. Second we have sent, replies, work and studies. 5 example, 5 verbs. Teacher knows the truth. अब knows ये यानी कि 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हमारा वर्ब हम प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। जब भी 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डज, राइट। एंड पूरा सेंटेंस पॉजिटिव था तो मैं नेगेशन यूज करूंगी। एंड टीचर यहाँ पर फेमिनिन भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पर मस्कुलिन भी हो सकते हैं, तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन गिवन। ठीक है, यू सेंट मी अ मेल, यहाँ पर सेंट वर्ड यूज किया है, सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंट, सेंड, सेंट, सेंट, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस, जिसके लिए हम यूज करेंगे डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव से टैग करेंगे और सब्जेक्ट प्रोनाउन यू को यूज करके टैग कर देंगे। Nobody replies on this. Now this is a type of a question जहां पर आपके पास indefinite pronoun आ जाए, तो बहुत बार बच्चे इस V5 को देखकर does यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, nobody replies on this, तो आप doesn't they नहीं लिख सकते। अभी रिप्लाइज के हिसाब से आंसर आना चाहिए था डजंट, लेकिन नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। ये पेक्यूलर टाइप है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोलते तो आप जेंडर यूज करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यूज करते, लेकिन यहाँ पर कुछ यूज नहीं किया है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि बाकी के बचे हुए प्रोनाउन डेफिनेट प्रोनाउन हो जाते हैं, राइट। तो ये बेसिक मिस्टेक हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, हम यूज करेंगे डू, उसके साथ लगाएंगे नॉट और फिर यूज करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए दे। ठीक है, ये पेक्यूलर में हम गो थ्रू करने वाले हैं। Fourth example is they work there, they work there. So
वर्क आ गया यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे और इसे नेगेशन लगा देंगे नॉट। हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन दे है, वी विल यूज द सेम सब्जेक्ट प्रोनाउन टू टैग द स्टेटमेंट, राइट। सोनाली स्टडीज इन दिस स्कूल, सोनाली इस स्कूल में पढ़ती है, तो ये हमारा हो गया सोनाली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली उसका जो वर्ब होगा वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज। सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेशन लगा दिया, सोनाली फेमिनिन कैटेगरी में आती है तो शी लगा के टैग कर दिया। लेट्स से अगर किसी को, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सपोज किसी को डाउट है, तो हम ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ डू में हमारे पास 3 वर्ब्स होते हैं, ठीक है, डू, डज एंड डिड। तो हम पहचाने कैसे, जब भी प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है तो आप डू का इस्तेमाल करें, जब भी प्रेजेंट टेंस सिनेरियो में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप डज का इस्तेमाल करें, और जब भी पास्ट टेंस में सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कॉमन है, डिड। हम फॉर्म्स ऑफ डू, डज और डिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये फिफ्थ फॉर्म, और ये होता है हमारा V2। जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको इसी वर्ब फॉर्म का दे देती हूँ कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन कैसा होगा यहां देखते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अगर हम किसी भी वर्ब का ले लेते हैं, वो चाहे डू, डज, डिड का हो, हैज, हैव, हैड का हो, या किसी मेन वर्ब का, तो वो हम कैसे लेंगे, देखिए। अगर डू हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, ये मेन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन है, बट ये ऑक्सिलरी फॉर्म में भी सेम यूज होगा। डू का बन जाता है डिड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, पहला वाला प्रेजेंट टेंस प्लूरल सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फॉर पास्ट टेंस सिंगुलर प्लूरल बोथ। V3 is past participle which is always used with has, have और had, ठीक है। ये मेन वर्ब्स के फॉर्म में बता रही हूं, लेकिन आप इसे ऑक्सिलरी फॉर्म को भी समझने के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। V4 हो जाएगा डू के पास साथ ing, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। V3 परफेक्ट फॉर्म्स बन जाता है, तो आप टेंसेस का भी लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर, और डू के साथ es बन जाएगा तो वो हो जाएगा डज, क्योंकि V5 हम हमेशा सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं। देखिए यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सिंगुलर्स, प्लूरल्स, सिंगुलर प्लूरल बोथ, और ये तो हमेशा हैव, हैज, हैड के साथ यूज होगा। and this is used whenever it is continuous tense। चलिए, फॉर्म्स ऑफ डू लिया था तो हैव भी ले लेते हैं। यहां पर हैव, हैड और हैड, हैविंग, हैज, है ना, पीछे मैंने बताया था, हमारे पहले वाले लेक्चर में भी हमने ये कवर किया है, फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू डू एंड टू हैव। जैसे हम मेन वर्ब का करते हैं, लेट्स से स्पीक, spoke, spoken, speaking, speaks। अब बच्चा, ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अगर तो आपके पास फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू डू, टू हैव अगर अवेलेबल है सेंटेंस में, ऑक्सिलरी फॉर्म्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म्स अगर अवेलेबल है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैग द स्टेटमेंट। पॉजिटिव है, नेगेटिव है देखकर कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया और काम खत्म। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होंगे तो हम फॉर्म्स ऑफ डू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इस्तेमाल, हम अपने मेन वर्ब्स को चेक करेंगे, यानी कि जो मैंने देखिए लिखा है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सेंड, 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 सेंडिंग, सेंड्स, आपको मेन वर्ब्स को चेक करना है, मेन वर्ब्स का आपको फॉर्मेशन चेक करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल यूज फॉर्म्स ऑफ डू फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। I'll go back to the fourth condition. This is the fourth condition.
एंड दिस फोर्थ कंडीशन सेज अबाउट दी सम पेक्यूलर टाइप्स, कि कोई ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं, ये ऐसे ही आते हैं। ये एक्चुअली बेस्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, जिसमें हमने ऑर्डर, सजेशन एंड रिक्वेस्ट लिया है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें एक ऑर्डर हो, तो आप ना हमेशा, जैसे एग्जांपल है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देयर इज इंटोनेशन ऑफ कमांड, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप फ्रेम जब करते हो, टैग करते हो, इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, मतलब अफर्मेशन में होता है, और ये हमेशा विल यू ही लिखते हैं, दिस वोंट चेंज। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू। शट अप, विल यू, तो हमने किसी को ऑर्डर दिया, कमांड दिया, तो वो इंटोनेशन में दिखेगा कि भाई हमने किसी को कमांड किया है, तो वो इंटोनेशन भी वैसी लगनी चाहिए, इसलिए विल यू ऑल पॉजिटिव एंड विल यू विल बी द पेक्यूलियर टाइप, वो नहीं चेंज होगा, ऐसा का ऐसा ही लिखना है हमें। सेम रूल गोज फॉर सजेशन। सजेशन यहाँ पर हम जब सलाह मशवरा देते हैं किसी को, तो जनरली ग्रुप में होगा, हम बोलेंगे लेट्स स्टॉप टीजिंग हिम, लेट्स गो टू अ पार्टी, लेट्स वॉच मूवी। सो ये सारे सेंटेंसेस लेट्स से शुरू हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यही आपके लिए बहुत बड़ा हिंट होगा कि भाई ये सजेशन है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये हमेशा किससे टैग होगा, शैल बी। नाउ I'll just make it small because capital letter is not allowed, so it should be shall be in small letters. Request, अगर आप किसी से विनती कर रहे हैं प्लीज क्लोज द डोर, तो हमारा इंटोनेशन भी वैसे ही होगा। एंड नाउ इसके लिए आप हमेशा नेगेटिव बनाते हो, दैट इज वोंट यू, एंड आई जस्ट मेंशन इट हियर, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेशन में आता है ये। ठीक है, और आप हमेशा और हमेशा इसे वोंट यू करके ही यूज करते हैं, वोंट यू। ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, पेक्यूलर टाइप्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में ये आता है।